What's up, people? This is your boy Roy. I'm back with another video, another exciting day. Fresh mood, fresh start, but the same old face. And I only make videos when it's my day off. That means it's my day off today. So welcome back to the channel once again, and hope you all are doing absolutely fine. And I think मुझे अंदर जाना पड़ेगा because it's raining, it's drizzling, and मैं नहीं चाहता कि मेरा कैमरा भीगे. Though it's a waterproof camera, but then still. गाइस यहाँ का वेदर देखो. अभी 1 मिनट पहले मैं बाहर शूट कर रहा था, तभी धूप था. एंड चेक दिस आउट नाउ. इट्स लाइक नॉट इवन 1 मिनट. अच्छा खासा सनी वेदर से अचानक से क्लाउड आया एंड इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग. एंड ड्रिजलिंग होते होते रेनिंग. वाह, किसी का भरोसा नहीं है. अभी और ज़ोर से आ गया. सो आई थिंक आई हैव टू कॉल अप माई फ्रेंड एंड प्रॉब्ली वील हैव टू ड्रॉप द प्लान. कोई बात नहीं, किस्मत ही झंडे. हेलो. हाँ भाई. अरे यार, आज का ना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा यार. हाँ भाई, मेरे को भी वही लग रहा था. मैं अभी देखा कि बाहर बारिश हो रही है, मैं भी वही सोचा कि है ना, आपको फ़ोन करके बोल देता हूँ कि नहीं होगा. हाँ वही तो, आज नहीं हो पाएगा यार. ऐसा करते हैं ना, हम लोग नेक्स्ट वीक चलते हैं, ठीक है फिर. हाँ, तो बाहर का प्लान तो कैंसिल हो गया. अब घर पे बैठ के दिन निकालना है. यूजुअली मेरा जब भी छुट्टी होता है ना, तो मैं एक चीज़ ज़रूर करता हूँ, वो ये है कि मैं कुछ ना कुछ एक डिश बनाता हूँ. सो आई डू कुकिंग वेन एवर आई एम होम, वेन एवर इट्स माई डे ऑफ. सो व्हाट डू यू गाइस से, रेसिपी शेयर करें? सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट आई जस्ट रश इन टू माई किचन एंड मैं सब प्रिपरेशन कर लेता हूँ. फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या डिश बनाने जा रहा हूँ एंड क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी किए हैं. ऑलराइट. सो आई एम हियर इन माई किचन एंड आई हैव ऑल माई इंग्रेडिएंट्स रेडी. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, चलिए शुरू करते हैं. So the first things first, since we are making chicken, we have 800 grams of chicken here. Then this is cashew nut paste. I have used 150 grams of cashew nut. I have soaked it in water overnight, and then I have blended it with almond milk. This is chopped ginger. It's about 1 tablespoon. 2 green chili slit, and I'll be using half and half. You can use milk, but I would prefer half and half. That's half cream, half milk. Then from here I start. We have ghee, some whole spices, salt as per your taste, and just about 1.5 teaspoon of, or I guess 1 teaspoon of coriander powder. This is homemade, freshly ground coriander powder. I have roasted the coriander seeds and I have grounded it into a powder. And the ultimate, saffron, kesar. So these are the basic ingredients that you need to make this dish. So today the dish I'm going to be making is called creamy chicken. It's chicken in white gravy or white curry, whatever you want to call it. So let's get into it. So turn on the heat first. So the pan is hot enough. I'll start with adding some ghee. And a little bit of oil. Make sure the flame is medium, नहीं तो एकदम गर्म होगा तो the ghee will start turning brown, which we don't want really. So the first thing that goes in is the whole spices, all of them actually. So just saute them a little bit. थोड़ा चलाना है इसको, बस वो घी में उसका थोड़ा फ्लेवर आ जाए. ऐसे ही फूटता है, so be careful. The second thing we are going to do is straight away add the chickens. Lovely. Now since we have added chicken in this, the temperature of the ghee will drop down. So at this point we can increase the heat. So I'll just turn it into high. And इसी के साथ सॉल्ट, या आपके टेस्ट के हिसाब से, अगर कम लग रहा है तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं. बट मेक श्योर आप कम से ही शुरू करें, बिकॉज नमक हमेशा बाद में ऐड किया जा सकता है, पर अगर ज़्यादा हो गया तो खाना वेस्ट है. लो जी,
So far there is no rocket science and आगे भी नहीं होगा, I'm pretty sure. It's very easy recipe and very delicious, I must say. See, the only thing आप लोगों को ध्यान में रखना है is कि चिकन का जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, that has to go completely, but at the same time it should not get colored. वो ब्राउन नहीं होना चाहिए, वो भुनना नहीं चाहिए. That's the only thing you take care in this particular recipe. Now I'll lower the temperature. अदरवाइज़ मेरा चिकन जो है वो ब्राउनिश होना शुरू हो जाएगा, विच आई डोंट रियली वांट. एज यू कैन सी हल्का सा हुआ है, बट उतना ठीक है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब इतना होने के बाद यू कैन ऐड द जिंजर्स. इट्स ऑलरेडी स्मेलिंग गुड. ऑल्सो वी कैन थ्रो इन द कोरिएंडर पाउडर, जस्ट अ लिटिल बिट, नॉट टू मच. So what happens, the coriander and the ginger, when it combines, it gives a really unique flavor to it. Now let this cook for like about 2 to 3 minutes in a medium flame, and then we're going to add the half and half. Now let's just add the half and half. Here it goes. तो ये करीबन 473 ml है, तकरीबन हाफ लीटर. अच्छा, अब ये जो डिश है ये स्लो कुकिंग वाला डिश है, ठीक है. इसमें आप घाई करोगे या जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा. दिस नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. सो धीरज रख के अच्छे तरीके से स्लो कुकिंग प्रोसेस में इसको बनाएं. एंड गाइस, अभी इसमें हल्का सा बॉयल आने का वेट करें. तो बॉयल आने के लिए मैंने फ्लेम को वापस से हाई कर दिया है. सो यू वांट दिस जस्ट टू ब्रिंग इट अप टू अ बॉयल. एंड जैसे ही हल्का सा बॉयल आएगा हम उसमें कैश्यू नट पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने बना के रखा था. एंड एज यू कैन सी बॉयल आना स्टार्ट हो गया है. So it's the time to add the cashew nut paste, and here it goes. चलो जी, I'll use my spatula. ये बहुत कीमती चीज़ है, इसको पूरा निचोड़ के लीजिए. And mix this well. Now flame को थोड़ा सा कम कर दीजिए and let it boil, let it cook. अच्छा, बीच बीच में इसको चलाते रहना बहुत ज़रूरी है. नीड टू गिव अ चेक रेगुलरली एंड स्टर इट. अदरवाइज़ क्या होगा, ये जो मलाई है, जो मिल्क है, वो नीचे लग जाएगा. एंड अगर वो लग गया तो पूरा जला हुआ स्मेल आएगा पूरे डिश में. तो बेसिकली आपका पूरा डिश ख़राब हो जाएगा, विच वी रियली डोंट वांट. एज यू कैन सी बॉयल आ गया है. इसको एकदम धीमी आंच पे, जितना लो हो सके उतना लो फ्लेम पे इसको अभी कुक करना है. आपको कवर करना है, स्टर करना है, और इसी तरीके से आपको रिपीट करते रहना है. ध्यान रहे, यू हैव टू गिव इट अ स्टर रेगुलरली. एंड इफ़ यू गाइज फील कि ग्रेवी थिक हो गया है, सो यू कैन ऑलवेज ऐड सम मिल्क. आई एम यूजिंग आलमंड मिल्क बिकॉज इस डिश में जो है एक्चुअली आलमंड का पेस्ट जाता है. नाउ सिंस आई डोंट हैव दैट मच आलमंड टू मेक अ पेस्ट, तो मैंने क्या किया, कैश्यू नट का पेस्ट बना लिया. बट देन आई हैव यूज्ड आलमंड मिल्क, सो मुझे आलमंड का फ्लेवर भी मिल जाएगा एंड कैश्यू नट का रिचनेस भी मिल जाएगा. हमेशा ना सब्सटीट्यूट ढूंढना चाहिए. देयर इज़ ऑलवेज अ सब्सटीट्यूट टू एवरीथिंग. सो कुकिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट. इसका कोई फिक्स्ड मदर रेसिपी नहीं है कि ये ऐसा ही होना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट. कोई चीज़ नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं, ओके, ट्राई टू मेक इट विदाउट दैट, सब्सटीट्यूट कर लो, सब पॉसिबल है. एक और की इंग्रेडिएंट है जो मैं बताना भूल गया. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. वो है कसूरी मेथी. मैंने यहाँ पर पैन गरम कर लिया है. इसमें हम कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे. एंड ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको हाथों से सिर्फ क्रश करके उसका पाउडर बना लेंगे. सो गाइस, आई हैव स्टार्टेड ड्राई रोस्टिंग माय फेनुग्रीक लीव्स, ड्राई फेनुग्रीक लीव्स. दिस इज कॉल्ड कसूरी मेथी. सो व्हाट हैपेंस इज, जब आप इसको ड्राई रोस्ट करते हो, आप किसी भी चीज़ को जब ड्राई रोस्ट करते हो, हीट देते हो हल्का सा स्पाइसेस के अंदर, तो उसके अंदर एक एसेंशियल ऑयल होता है. तो वो ऑयल रिलीज़ करता है विच एनहांसेस द फ्लेवर इवन मोर. तो एक और स्टर देने का टाइम हो गया है. आई विल गिव इट अ स्टर, मिक्स इट वेल. तो ये जो मेरा लीव्स है ये ड्राई रोस्ट हो गया है. अब मैं इसको इसमें निकाल लेता हूँ. अब इसे करना क्या है, अपने साफ़ सुथरे हाथों से इसको ऐसे पकड़ना है एंड इसको बस मसलना है. सी, हैंड इज़ द बेस्ट टूल यू कैन यूज़, आई टेल यू.
तो गाइस तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं एंड एज यू कैन सी, अगर आपको दिख रहा हो तो, कि साइड से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है. दैट मीन्स माई ग्रेवी इज़ ऑलमोस्ट कुकड. बस थोड़ा सा और देन इट विल बी ऑल रेडी. नाउ आई लाइक अ लिटिल स्पाइसी, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक आई कैन ऐड दिस चिलीज़. हियर इट गोज़. ज़्यादा खाते हो ज़्यादा डालो, कम खाते हो कम डालो, आपकी मर्ज़ी. So guys, it's almost done and it's bubbling up. The perfect time to add the best ingredient, the best ingredient, that's dry fenugreek leaves. Not too much. खुशबू के लिए बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा. अच्छा, इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपको तीखा थोड़ा सा बनाना है, आपको ग्रीन चिली भी नहीं डालना है तो क्रश पेपर होता है, ब्लैक पेपर, आप वो डाल सकते हो. अदरवाइज ग्रीन चिली इज़ गुड टू गो. ऑल्सो एक और इंग्रेडिएंट है जो कि है ये. नाउ दिस इज़ कार्डमम पाउडर, अगेन होममेड. सो जस्ट कपल ऑफ पिंचेस, दैट शुड बी गुड. और हमने चिकन को दे दिया है तड़का मिर्च का. गैस को कर दिया है बंद. इसको थोड़ा फैला लेंगे. इसमें डालेंगे आलमंड फ्लेक्स एंड द फाइनल इंग्रेडिएंट केसर, सैफरन. इसमें कंजूसी ना करें. तो हमारा चिकन जो है कुछ इस तरीके से लग रहा है दिखने में, एज यू कैन सी. एंड ऊपर मैंने ये लाइट लगा के रखा है एक्सटर्नल लाइट के लिए, तो इसको कर देते हैं बंद. तो अब आप देख सकते हैं, दैट्स हाउ इट लुक्स. सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इट. डिश हो गई है तैयार. बट अभी मैं इसको प्लेटिंग नहीं करूँगा बिकॉज ये डिनर टाइम पे हम लोग निकालेंगे. तो मैंने आपको उसी में गार्निश करके दिखा दिया हाउ इट्स गोना लुक. तो आई एम वेरी श्योर दैट आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगा होगा. एंड डू गिव इट अ ट्राई. जब भी आपको मौका मिले, जब भी टाइम हो, गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट वंस. एंड कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो हाउ वॉज द रेसिपी. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था. मैंने सोचा एक रेसिपी बना रहा हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ. And with that said guys, if you guys like this video for whatsoever reason, do give this video a thumbs up, comment, share and subscribe to my channel if you guys are new. So see you guys until next time in my next video. Till then, take care, be safe, be happy and just do whatever you want, my friends. Bye bye.